ہیرا پر مسلمانوں کے قبضے کی تکمیل ہو چکی تھی۔ معاہدے کے بعد تمام قلعہ داروں اور امراء نے خالد رضی اللہ عنہ کی اطاعت قبول کر لی۔ یہ دراصل خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اطاعت تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نمائندگی کر رہے تھے۔ اس کے بعد خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی تمام تر فوج کے ساتھ 8 رکعت نفل شکرانے کے پڑھے۔ فارغ ہونے کے بعد خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج سے مختصر سا خطاب کیا۔ موتا کی لڑائی میں میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹی تھیں، لیکن آتش پرستوں نے جس جواں مردی سے مقابلہ کیا ہے اسے میں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ انہوں نے الیس میں ہم سے جو لڑائی لڑی ہے، ایسی لڑائی میں نے پہلے نہیں دیکھی۔ اسلام کے پاس بانو، فتح و شکست اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس کے نام کو، اس کی نعمتوں کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت دل میں رکھو۔ ہیرا بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ یہ بھی دل میں رکھو کہ ہمارا جہاد ابھی ختم نہیں ہوا۔ جب تک کفر کا فتنہ باقی ہے، جہاد ختم نہیں ہوگا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے شہیدوں کے لیے دعائے مغفرت کی، پھر زخمیوں کی عیادت کو گئے۔ شہیدوں کی نماز جنازہ بڑا ہی رقت آمیز منظر تھا۔ وطن سے اتنی دور جا کر شہید ہونے والوں کے لیے ہر آنکھ میں آنسو تھے۔ شہیدوں کو قبروں میں اتارا گیا تو یہ قبریں تاریخ کے سنگھائے میل بن گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ جب ہیرا کا نظم و نسق سنبھالنے کے لیے اس محل نما مکان میں گئے جو ازدابہ کا رہائشی مکان تھا، تو بے شمار رؤسا اور امراء تحفے لیے کھڑے تھے جو انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو پیش کیے۔ ان میں بیش قیمت اشیاء تھیں، ہیرے اور جواہرات تھے۔ مدینہ کے مجاہدین حیران ہو رہے تھے کہ کوئی قوم اتنی دولت مند کیسے ہو سکتی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ تحفے قبول تو کر لیے، لیکن بوریا نشینوں کی قوم کے اس سالار اعلیٰ نے اپنے لیے ایک بھی تحفہ نہ رکھا۔ تمام تحفے مال غنیمت کے ساتھ امیر المومنین کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے مدینہ بھیج دیے۔ مال غنیمت زیادہ نہیں تھا کیونکہ ہیرا والوں نے جزیہ تسلیم کر لیا اور اطاعت بھی قبول کر لی تھی۔ ایک دلچسپ اور عجیب واقعہ ہو گیا۔ کچھ برس پہلے کی بات ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام میں بیٹھے تھے اور ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھیں۔ باتوں کا رخ کفار کے علاقوں کی طرف مڑ گیا اور ذکر فارس کی شہنشاہی کا چل نکلا۔ ہیرا اس شہنشاہی کا بڑا ہی اہم مقام تھا۔ کسی صحابی نے کہا کہ ہیرا ہاتھ آ جائے تو اسے فوجی اڈا بنا کر کسرا پر کاری ضربیں لگائی جا سکتی ہیں۔ 2 مورخوں بلازری اور تبری نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑے عرصے بعد ہیرا ہمارے قبضے میں ہوگا۔ یہ دونوں مورخ لکھتے ہیں کہ اس محفل میں ہیرا کی اہمیت اور اس علاقے کی خوبصورتی کی باتیں ہونے لگیں۔ عبد المسیح مشہور آدمی تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام کرامہ تھا۔ اس کے حسن کے چرچے تاجروں وغیرہ کی زبانی دور دور تک پہنچے ہوئے تھے۔ اس کے اپنے ملک میں اس کا حسن و جمال ضرب المثل بن گیا تھا۔ بلازری اور تبری نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس محفل میں سیدھا سادہ اور عام سا ایک آدمی شویل بھی موجود تھا۔ یا رسول اللہ، شویل نے عرض کی، اگر ہیرا فتح ہو گیا تو عبد المسیح کی بیٹی کرامہ مجھے دے دی جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور ازراہ مذاق کہا، ہیرا فتح ہو گیا تو کرامہ بنت عبد المسیح تیری ہوگی۔ ان مورخوں نے یہ نہیں لکھا کہ ہیرا کی فتح سے کتنا عرصہ پہلے یہ بات ہوئی تھی۔ اب ہیرا فتح ہو گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کی فوج کا ایک اتھیڑ عمر سپاہی اس وقت ان کے سامنے جا کھڑا ہوا جب کچھ شرائط عبد المسیح اور خالد رضی اللہ عنہ کے درمیان طے ہو رہی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے اس سپاہی سے پوچھا، کیا نام ہے تیرا اور میرے پاس کیوں آئے ہو؟ سپاہی نے کہا، سالار اعلیٰ، میرا نام شویل ہے۔ خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ عبد المسیح کی بیٹی کرامہ تجھے دے دی جائے گی۔ آج ہیرا فتح ہو گیا ہے، شہزادی کرامہ مجھے دی جائے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تو کوئی گواہ پیش کر سکتا ہے؟ خدا کی قسم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وعدے کی خلاف ورزی کی جرت نہیں کر سکتا، لیکن گواہ نہ ہوئے تو میں تیری بات کو سچ نہیں مان سکتا۔ شویل کو 2 گواہ مل گئے۔ وہ ہیرا کی فاتح فوج میں موجود تھے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی موجودگی میں شویل سے یہ وعدہ فرمایا تھا۔ خالد نے عبد المسیح سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے، تجھے اپنی بیٹی اس شخص کے حوالے کرنی ہوگی۔ عبد المسیح نے کہا، یہ بھی شرائط میں لکھ لو کہ میری بیٹی کرامہ اس سپاہی کو دے دی جائے۔ یہ حکم عبد المسیح کے گھر پہنچا کہ کرامہ مسلمانوں کے سالار اعلیٰ کے پاس آ جائے۔ کرامہ نے پوچھا کہ اسے کیوں بلایا جا رہا ہے۔ اسے بتایا گیا کہ ایک مسلمان سپاہی نے اس کی خواہش کی ہے اور اسے اس سپاہی کے حوالے کیا جائے گا۔ ایسا نہ ہونے دو۔ گھر میں جو ایک محل کی مانند تھا، دوسری عورتوں کا شور اٹھا، ایسا نہ ہونے دو۔ شاہی خاندان کی ایک عورت کو حوالے نہ ہونے دو جو عرب کا وحشی بدو ہے۔ کرامہ نے کہا، مجھے اس کے پاس لے چلو۔ اس مسلمان سپاہی نے میری جوانی کے حسن کی باتیں سنی ہوں گی، وہ کوئی جاہل اور احمق لگتا ہے۔ اس نے کسی سے یہ نہیں پوچھا ہوگا کہ یہ کب کی بات ہے کہ میں جب جوان ہوا کرتی تھی۔
बिलाजरी की तहरीर के मुताबिक किरामा को खालिद रजी अल्लाह अन्हो के सामने ले जाया गया। शबील मौजूद था। उसने एक ऐसी बुढ़िया देखी जिसके चेहरे पर झुर्रियां थी और बाल सफेद हो चुके थे। मौर्रिख तिबरी ने किरामा की उम्र 80 साल लिखी है। उसके बाप अब्दुल मसीह ने खालिद रजी अल्लाह अन्हो को अपनी उम्र 200 साल बताई थी। बाज मौर्रिख इन उम्रों को तस्लीम नहीं करते। अब्दुल मसीह की उम्र 100 साल से जरा ही ज्यादा थी और किरामा की उम्र 60-70 साल के दरमियान थी। बहरहाल किरामा ज़ईफुल उम्र थी। शबील ने उसे देखा तो उसके चेहरे पर जो खुशी के आसार थे वो उड़ गए और वो मायूस हो गया। अचानक उसे एक ख्याल आ गया। शबील ने कहा, अमीर लश्कर, ये शर्त लिखी गई है कि किरामा बिनते अब्दुल मसीह मेरी लौंडी है। अगर ये मुझसे आज़ादी चाहती है तो मुझे रकम अदा करे। किरामा ने पूछा, कितनी रकम? शबील ने कहा, 1000 दिरहम। मैं अपनी माँ का बेटा नहीं हूँगा कि 1 दिरहम भी बख्श दूं। किरामा के बूढ़े होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने इस खादिमा को जो उसके साथ आई थी इशारा किया। खादिमा दौड़ी गई और 1000 दिरहम ले आई। किरामा ने ये दिरहम शबील के हवाले कर दिए और आजाद हो गई। शबील का ये आलम था कि 1000 दिरहम देखकर हैरान हो रहा था, जैसे उसके होश गुम हो गए हों। उसने अपने साथियों को जाकर फातिहाना लहजे में बताया कि उसके साथ धोखा हुआ था, कि उसने एक ज़ईफुल उम्र औरत को जवान समझ लिया था, लेकिन उसने उससे 1000 दिरहम कमा लिए। उसके एक साथी ने कहा, सिर्फ 1000 दिरहम? तू सारी उम्र अहमक ही रहा। किरामा शाही खानदान की औरत है, उससे तू कई हजार दिरहम ले सकता था। शबील ने मायूस होकर कहा, अच्छा, मैं तो समझता था कि 1000 दिरहम से ज्यादा रकम होती ही नहीं। उसके साथियों के एक जोरदार कहकहे ने उसे और ज्यादा मायूस कर दिया। खालिद रजी अल्लाह अन्हो ने माल गनीमत के साथ तमाम तोहफे मदीना भेज दिए। मदीना से खालिद रजी अल्लाह अन्हो के लिए अमीरुल मोमिनीन ने पैगाम भेजा कि ये तोहफे अगर माल गनीमत में शामिल हैं या जिजिये में तो काबिल कबूल हो सकते हैं, अगर नहीं तो जिन्होंने ये तोहफे दिए हैं उनसे इनकी कीमत मालूम करके जिजिये में शामिल कर लो। अगर तुम जिजिया वसूल कर चुके हो तो तोहफों की रकम उन लोगों को वापस कर दो। खालिद रजी अल्लाह अन्हो ने उन सब को बुलाकर उन्हें तोहफों की कीमत अदा कर दी। हैरा की फतह के बाद चंद दिनों में खालिद रजी अल्लाह अन्हो ने वहां का नज़्म नस्ख रवां कर दिया और हैरा के उमरा को ही इंतजामिया का जिम्मेदार बना दिया। खालिद रजी अल्लाह अन्हो ने अपने सालारों से कहा, मेरे भाइयों, मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं यहाँ बैठा रहूं, लेकिन नज़्म नस्ख की बहाली बहुत जरूरी है। इससे ज्यादा जरूरी यह है कि नज़्म नस्ख को इस बुनियाद पर रवां किया जाए कि लोगों को फायदा पहुंचे, वो सुकून और इत्मीनान महसूस करें, उनकी जान माल और उनकी इज्जत व आबरू को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। खुदा की कसम, मैं इन लोगों पर, ईसाइयों पर और इन आतिश परस्तों पर साबित करूंगा कि इस्लाम वो मजहब है जो जुल्म को बहुत बड़ा गुनाह समझता है। रियाया को अपनी औलाद समझो। क्या तुमने नहीं देखा कि मैंने नज़्म नस्ख इन्हीं लोगों के सुपुर्द कर दिया है? रब्बे काबा की कसम, मैं इन पर अपना हुक्म नहीं ठोंसूंगा। अपना हुक्म न ठोंसने के नताइज चंद दिनों में सामने आ गए। इस्लाम का बुनियादी उसूल यही था कि लोगों के दिल जीतो, मगर दिल जीत कर उन्हें धोखा न दो, उन्हें उनके हक दो। खालिद रजी अल्लाह अन्हो इस्लाम के पहले सिपाह सालार थे जिन्होंने मदीना से निकलकर किसी दूसरी कौम के इलाके फतह किए और उन्हें इस्लाम के इस बुनियादी उसूल पर अमल करने का मौका दिया। मिस्र के मोहम्मद हुसैन हैकल ने बहुत से मौर्रिखों के हवाला देकर लिखा है कि खालिद रजी अल्लाह अन्हो ने दुश्मनों के सर उड़ाने शुरू किए तो फरात को लाल कर दिया और ऐसे किसी आदमी को जिंदा न छोड़ा जिसकी तरफ से दीन इस्लाम को जरा सा भी खतरा हो। खालिद रजी अल्लाह अन्हो जाती दुश्मनी के कायल नहीं थे। मुतासिब तारीखदानों ने खालिद रजी अल्लाह अन्हो को जालिम सालार कहा है, लेकिन खालिद रजी अल्लाह अन्हो ने जो भी इलाका फतह किया वहाँ का इंतजाम मफतूहा, उमरा और रऊसा के सुपुर्द कर दिया। अलबत्ता उनके निगरान यानी बालाई हुकाम मुसलमान मुकर्रर किए जाते थे। हैरा को फतह करके खालिद रजी अल्लाह अन्हो ने सारे फारस को फतह नहीं कर लिया था, बल्कि खालिद रजी अल्लाह अन्हो खतरों में घिर गए थे। आतिश परस्त उन पर चारों तरफ से हमला कर सकते थे। अगर बड़े पैमाने पर हमला न करते तो शब खून मार मार कर मुसलमानों की फौज को नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन आतिश परस्तों ने ऐसी कोई कार्रवाई न की। इसकी और कई वजूहात थीं, जिनमें एक ये थी कि मफतूहा इलाकों के लोग मुसलमानों के सलूक से मुतासिर होकर उनके हामी और मावन बन जाते थे। हैरा और नवाही इलाके में दीर नातिफ नाम की बस्ती थी जो ईसाइयों की बस्ती कहलाती थी। वहाँ एक बहुत बड़ा गिरजा था जिसके पादरी का नाम सुलूबाबन नस्तूना था। वो ईसाइयों का मजहबी पेशवा ही नहीं, उनका अस्करी कायद भी था। वो मैदान जंग में कभी नहीं गया था, लेकिन जंगो जदल के फन में महारत रखता था। फारस के ईसाई ललकार कर मुसलमानों के मुकाबले में आए थे और मुसलमानों की तलवारों और बर्छियों से बुरी तरह कटे थे। ऐसे ईसाइयों की तादाद खासी कम हो गई थी जो लड़ने के काबिल थे। बूढ़े जिंदा रह गए थे या औरतें जिंदा थीं। सलूबाबन नस्तूना अक्सर कहा करता था कि मजहब सिर्फ एक जिंदा रहेगा और ये ईसाइयत होगी। जरतुश्त रहेगा न मदीना का इस्लाम। उसने अपने वाज में कई बार कहा था, सब मिट जाएंगे और जमीन पर यसू मसीह की हुकूमत होगी।
हेरा फतह होने तक लड़ने वाले हजारहा ईसाई मिट गए थे। बाकी मुसलमानों के डर से भागकर इधर उधर जा छुपे थे। उनके सरकर्दा अफराद ने पादरी सलूबाबन नस्तूना के साथ राब्ता रखा हुआ था। सलूबा ने कोशिश की थी कि ईसाइयों को यकता और मुत्तहिद करके मुसलमानों पर शबखून मारने के लिए तैयार करें, लेकिन ईसाइयों पर मुसलमानों की ऐसी दहशत बैठ गई थी कि वो शबखून और छापामार जंग के लिए तैयार न हुए। मुकद्दस बाप, एक रात एक नामवर जंगजू ईसाई शमील बुरजाना ने पादरी सलूबाबन नस्तूना से कहा, क्या तुम इस बात पर यकीन रखते हो कि गिरजे की घंटियां और तुम्हारे वाज इस तबाही को रोक लेंगे जो हमारी तरफ तेजी से बढ़ी आ रही है? पादरी सलूबा ने कहा, नहीं, मेरे वाज और गिरजे के घंटे की आवाजें अब इस तबाही को नहीं रोक सकती। शमील बुरजाना ने कहा, फिर तुम हमें इजाजत क्यों नहीं देते कि हम मुसलमानों की फौज पर हर रात शबखून मारें? मदीना के मुसलमान जिन नहीं, भूत नहीं, इंसान हैं, हमारी तरह के इंसान। पादरी सलूबा ने कहा, शमील, बेशक वो इंसान है, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। मैंने उनमें कुछ और ही बात देखी है। वो फतह का अज़्म लेकर आए हैं। अगर उन्होंने अपने जिस्मों के मुताल्लिक यही रवैया रखा तो आखिरी फतह भी इन्हीं की होगी। शमील ने कहा, मुकद्दस बाप, मैं जिस्मों वाली बात नहीं समझा। पादरी सलूबा ने कहा, समझने की कोशिश करो। ये लोग जिन्हें किसरा उर्द शीर अरब के बद्दू कहा करता था, जिस्मानी आसाइशों और लज्जतों को कबूल नहीं करते। शमील ने कहा, मुकद्दस बाप की जबान से दुश्मन की तारीफ अच्छी नहीं लगती। अगर तुम अपने आप में दुश्मन के अच्छे औसाफ पैदा कर लो तो तुम शिकस्त से बच सकते हो। पादरी सलूबा ने कहा, क्या तुम्हारे दोस्तों ने मुसलमानों को जाल में फंसाने के लिए 15 हसीन लड़कियां नहीं भेजी थी? क्या तुम ये समझते हो कि तुम लोग जो कुछ करते हो इसका मुझे इल्म नहीं होता? तुम्हारी तलवारों की धार कुंद हो चुकी है, इसलिए तुम लोगों ने औरतों का इस्तेमाल किया है। क्या तुम इनकार करोगे? शमील ने शर्मसार सा होकर कहा, नहीं मुकद्दस बाप, हमारे एक बुजुर्ग ने कहा था कि एक तलवार एक वार में एक आदमी को काट सकती है, लेकिन एक हसीन औरत का एक वार 100 आदमियों को घायल कर सकता है। मुसलमान सवार घोड़ों को झील से पानी पिलाने लाया करते हैं। वो 4-4, 6-6 की टोलियों में आते हैं। झील के इर्द गिर्द ऊंची चट्टानें और घना जंगल है। हमारी लड़कियों ने मुसलमान सवारों को अपनी तरफ खींचने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन पर कुछ असर न हुआ। हमारी बाज लड़कियां नीम बरहन होकर उन्हें चट्टानों के पीछे चलने के इशारे करती रहीं, लेकिन हुआ ये कि बाज सवार मुंह फेर लेते और बाज हंस पड़ते। पादरी सलूबा ने कहा, और मुझे ये भी मालूम है शमील कि तुम लोगों ने मुसलमानों के गश्ती संतरियों को भी फांसने की कोशिश की थी, और तुम लोगों ने ये भी सोचा था कि मुसलमानों के सालारों और खालिद बिन वलीद को कत्ल करने के लिए लड़कियों का इस्तेमाल किया जाए। शमील ने कहा, हाँ मुकद्दस बाप, हमने ऐसा सोचा था। फिर इस सोच पर अमल क्यों न किया? इसलिए न किया कि जिस फौज के सिपाहियों का किरदार इतना मजबूत है उसके सालार तो फरिश्तों जैसे होंगे। शमील ने जवाब दिया, अब हमारे सामने यही एक सूरत रह गई है कि मुसलमान फौज पर शबखून मारने शुरू कर दें और उन्हें इतना नुकसान पहुंचाएं कि ये पसपाई पर मजबूर हो जाएं। पादरी सलूबा ने कहा, क्या तुम किसरा की फौज से ज्यादा ताकतवर हो? वो जो कहते थे कि जमीन पर कोई ताकत उनके मुकाबले में उठने की जुर्रत नहीं कर सकती, अब कहाँ है? आग को पूजने वालों के तमाम नामवर सालार मुसलमानों के हाथों कट गए हैं। हमने उनकी खातिर मुसलमानों से लड़कर गलती की है। शमील ने हैरान सा होकर पूछा, तो क्या मुकद्दस बाप, तुम ये क्या कहना चाहते हो कि हम मुसलमानों के साथ दुश्मनी न रखें? पादरी सलूबा ने जवाब दिया, हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ, बल्कि मैं मुसलमानों के साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। शमील ने कहा, मुकद्दस बाप, फिर तुम कहोगे कि मुसलमानों के मजहब को भी कबूल करना चाहते हो? पादरी सलूबा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब से हेरा पर मुसलमानों का कब्जा हुआ है मैं यही देख रहा हूँ कि इनसे हमारे मजहब को कितना कुछ खतरा है। मैंने देख लिया है कि ईसाइयत को कोई खतरा नहीं। मुसलमान अपना मजहब कबूल करने की दावत देते हैं, वो जबरदस्ती अपना मजहब मफतूहा लोगों पर नहीं ठूसते। क्या इन्हें मालूम नहीं कि जहाँ एक गिरजा है जिसमें मुझ जैसा जहाँ दीदा और मजहब पर मर मिटने वाला पादरी मौजूद है? इन्हें मालूम है शमील, मैं 2 इतवार गिरजे में आने वाले ईसाइयों के हुजूम में 2 अजनबी आदमियों को देखता रहा हूँ। मैंने उनके गलों में सलीबें लटकती देखी हैं। वो हर लिहाज से ईसाई लगते थे, लेकिन मेरी दूरबीन निगाहों ने भांप लिया था कि वो दोनों मुसलमान हैं और वो मदीना के नहीं, फारस के रहने वाले हैं। वो वलीद के बेटे खालिद के जासूस थे। मैं अपने वाज में मोहतात रहा। शमील ने कहा, मुकद्दस बाप, अगर तुम मुझे इशारा कर देते तो वो दोनों जिंदा वापस न जाते। पादरी सलूबा ने कहा, फिर इस गिरजे की ईंट से ईंट बच जाती। अक्ल और जोश में यही फर्क है शमील। तुम में जोश है और मैं अक्ल से काम ले रहा हूँ। मैं तुम लोगों को मुसलमानों पर शबखून मारने और लड़ने की इजाजत नहीं दूंगा। 2-3 रोज बाद पादरी सलूबा गिरजा में तमाम ईसाई सरदारों से कह रहा था, हकीकत को देखो, किसरा की इतनी जबरदस्त फौज मदीना की कलील सी फौज के मुकाबले में ठहर नहीं सकी। तुमने भी मुसलमानों का मुकाबला कर देखा है। अब मुसलमानों से टकरा कर तुम तबाह हो जाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। वक्त का साथ दो। मुसलमानों ने तुम्हारे मजहब के लिए कोई खतरा पैदा नहीं किया। उन्होंने हमें और आतिश परस्तों को भी अपनी अपनी इबादत गाहों में इबादत की इजाजत दे रखी है।
मुसलमानों ने अदल व इंसाफ में जो मसावत कायम की है वो तुम खुद देख रहे हो, और तुम ये भी देख रहे हो कि तुम उनके खिलाफ आतिश परस्तों के दोष बदोश लड़े थे, लेकिन मुसलमानों ने तुम्हारे खिलाफ किसी किस्म की इंतकामी कार्रवाई नहीं की। उन्होंने काश्तकारों की जमीनों पर कब्जा नहीं किया, उनकी फसलों में अपने घोड़े और ऊंट नहीं छोड़े, बल्कि आतिश परस्त हाकिम उन गरीब किसानों पर जो जुल्म सितम करते और उनकी खेतों की पैदावार उठा ले जाते थे, ये लूट खसूट खत्म हो गई है। इस हकीकत से इनकार न करो कि मुसलमान रियाया को पूरे हुकूक दे रहे हैं। एक सरदार ने पादरी सलूबा को टोकते हुए कहा, तुम पर खुदाई यसु मसीह की रहमत हो, क्या तुम हमें ये तरगीब दे रहे हो कि हम मुसलमानों की इताअत कबूल कर लें? एक और सरदार ने कहा, क्या ये हमारी बेइज्जती नहीं? मुसलमानों ने तुम्हारी इज्जत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। पादरी सलूबा ने कहा, क्या तुमने उन्हें फांसने और गुमराह करने के लिए अपनी लड़कियों को नहीं भेजा था? क्या वो तुम्हारी लड़कियों को उठाकर नहीं ले जा सकते थे? और मत भूलो कि किसरा के हाकिमों ने तुम्हारी कितनी लड़कियों के साथ जबरदस्ती शादी की थी। जिसे जो लड़की अच्छी लगी वो उसे हुक्मन ले गया। और ये भी सोचो कि फार्स के वो सालार और कमानदार कहाँ हैं जिनके साथ मिलकर तुम मुसलमानों के खिलाफ लड़े थे? क्या उन्होंने तुमसे पूछा है कि तुम किस हाल में हो? क्या उन्होंने आकर देखा है कि तुम में से जो मारे गए हैं उनकी बीवियां किस हाल में हैं, उनके बच्चे किस हाल में हैं? और मुसलमान तुम्हें सजा तो नहीं दे रहे? बेशक वो हमें भूल गए हैं। एक बूढ़े सरदार ने कहा, तू बजा कहता है मुकद्दस बाप। एक और सरदार बोला, अब बता हमें क्या करना चाहिए? तुम हमें किस रास्ते पर ले जाना चाहते हो? ये तुम्हारी सलामती का रास्ता होगा। पादरी सलूबा ने कहा, इसमें तुम्हारे जानो माल की और तुम्हारे मजहब की सलामती है। मैं मुसलमानों की इताअत कबूल कर रहा हूँ और मैं बानकिया और बिस्मा के इलाके की तमाम काबिल काश्त अराजी की लगान वसूल करके मुसलमानों को अदा किया करूंगा। तकरीबन तमाम मौरखों ने लिखा है कि मुसलमानों के हुस्न सलूक, अदल इंसाफ और उसलूब हुकूमत से मुतासिर होकर दीर नातिफ के पादरी सलूबा ने सबसे पहले खालिद रजी अल्लाह अन्हु के सामने जाकर इताअत कबूल की और 10,000 दिनार खालिद रजी अल्लाह अन्हु को पेश किए। इस रकम के साथ वो हीरे और बेशकीमत मोती भी थे जो किसरा उर्दशेर ने पादरी सलूबा को तोहफे के तौर पर दिए थे। ये मोती दरअसल रिश्वत थी जो उर्दशेर ने ईसाइयों को मुसलमानों के खिलाफ लड़ाने के लिए पादरी सलूबा को दी थी। खालिद रजी अल्लाह अन्हु के हुक्म से एक मुआहिदा लिखा गया। ये मुआहिदा मदीना के सालार खालिद बिन वलीद और सलूबा की कौम के साथ तय हुआ। इसके मुताबिक सलूबा ईसाई कौम की तरफ से 10,000 दिनार सालाना बतौर जिजिया अदा करेगा और किसरा के हीरे और मोती इस रकम के अलावा वसूल किए जाएंगे। जिजिये की रकम सिर्फ उन ईसाइयों से हर साल वसूल किया जाया करेगी जो इसकी इस्तेताअत और तौफीक रखते हैं और जो कमाने के काबिल होंगे। हर किसी को जिजिये का उतना ही हिस्सा देना पड़ेगा जितना वो आसानी से अदा कर सके। इस मुआहिदे की रूह से मुसलमानों पर यह फर्ज आयद होता है कि वो ईसाइयों की बस्ती बानकिया और बिस्मा को हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करें। पादरी सलूबा को इस कौम का नुमाइंदा तस्लीम किया जाता है जैसा कि इसे इसकी कौम ने तस्लीम किया है। इस मुआहिदे पर जो खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने किया है, तमाम मुसलमान रजामंद हैं और वो इस पर अमल करेंगे। पादरी सलूबा इस इलाके की नामवर शख्सियत थी। इर्द गिर्द के बड़े बड़े सरदारों और सरकर्दा अफराद ने जब देखा कि सलूबा ने खालिद रजी अल्लाह अन्हु की इताअत कबूल कर ली है तो वो सब हैरा पहुंचे और खालिद रजी अल्लाह अन्हु की इताअत कबूल करने लगे। उन्होंने जो नक़द जिजिया अदा किया वो 20 लाख दिरहम था। मुसलमानों की शजाअत की धाक दूर दूर तक बैठ गई। बड़ा ही वसी इलाका मुसलमानों के ज़ेरे नगी आ गया। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने वक्त ज़ाया किए बगैर उस इलाके में इस्लामी हुकूमत कायम कर दी और इन्हीं सरदारों में उमरा मुंतखब करके मुख्तलिफ इलाकों में मुकर्रर कर दिए। इसके साथ ही अपनी फौज के कुछ दस्ते इस मकसद के लिए सारे इलाके में फैला दिए कि कहीं से इस्लामी हुकूमत के खिलाफ बगावत न उठ सके। ये दस्ते घुड़सवार थे और बर्क रफ्तार। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने 3 बड़े ही तेज और फुर्तीले सालारों ज़र्रार बिन अल अज़वर, काका और मुसन्ना बिन हारिसा को इन दस्तों के साथ भेजा। इन तीनों का अंदाज ऐसा जारहाना था कि जिधर जाते उधर लोग दुबक जाते और उनके सरदार आगे आकर इताअत कबूल कर लेते।